Okay, good afternoon everyone. Let's continue with our revision for profits and gains of business and profession. Yesterday we were on section 36, so let's continue with that, right? Section 36 I taught you quite a few things. Let's understand. So section 36 में very important is employers contribution and employees contribution, correct? Now employees contribution में क्या होने वाला है? Let's understand. Employees contribution is first collected, it is treated as your income. Later on when you pay it within the due date of what? Due date of the fund, it is going to be treated as an expenditure. So it's very important. That is the provision about employees contribution. What about employers contribution? Employers contribution में क्या होता है? Yes, for employers contribution, he is paying the contribution, so it is out of his pocket that he is paying, it's going into employees fund. Employers contribution is treated as an expenditure provided the fund is recognized, approved. If it is unrecognized, then the expenditure becomes disallowable. You should also understand that employers contribution gets covered under section 43B. Now 43B means what? Where, how does it get covered there? 43B means the contribution of employers, contribution to staff welfare fund should be done within the due date of filing the income tax return. Is that clear to everybody? Yes. So moving ahead to the next section 36, let's just have a look at it. Yeah. So from the notes, if you see discount on zero coupon bonds, I told you, I had explained this already. Discount on zero coupon bonds are issued without any interest rate. Whatever discount is there, like I told you, it's maybe you buy them at discount that's at 90 and then you redeem it at 130 or 120 example. So जो भी difference है 30, that's called as discount. Who is paying this discount to you? The company who is issuing zero coupon bonds. This discount is allowed to be written off over the life of the bonds. It is allowed to be written off over the life of the bonds. Correct. Beyond that, now let's understand employers contribution towards recognized PF. I just covered this is an allowable expenditure. Then comes employers contribution towards pension scheme referred to in 80 CCD. Now I will tell you right away. You will understand about 80 CCD immediately. Now what happens with this 80 CCD? Okay, meanwhile you all tell me what happens with 80 CCD. I'll just open this file. There seems to be some. हाँ, what is 80 CCD? याद आ रहा है? डिडक्शन याद आ रहा है 80 CCD का किसी को? या 80 CCD क्या याद आ रहा है आपको? Do you know there is a deduction like this 80 CCD? This is a government का pension scheme है ये NPS. It is called as National Pension Scheme, right? So under this NPS, now what happens is this is NPS. NPS में whatever premium you pay, right? Whatever premium you pay, you are going to get a 80 CCD deduction. Now understand this very carefully. Who is going to pay premium? Now if you are a salaried employee, government will also, or government, non-government, कोई भी employer हो सकता है. Your employer will also contribute. You will also contribute to this fund. 80 CCD. So ये जो pension fund होने वाला है, annuity scheme होने वाला है, who is going to contribute? There is going to be employers country plus there is going to be employees country. तो किसके country आने वाले हैं यहाँ पे? Employer country plus employee country. बराबर है? Now when we talk about employers country, okay, employer is putting money into the pension scheme and इससे pension किसको मिलने वाला है? किसको मिलने वाला है? एम्प्लॉय को. ओके, एवरीवन्स व्यू पॉइंट लेट्स अंडरस्टैंड. पहले एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से बताओ. अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर पैसे फंड में डाल रहा है और उसको पेंशन मिल रहा है तो ये क्या होगा? बेनिफिट. व्हाट इज दिस? अ परक्विजिट. This is a perquisite. When employer contributes the money into this fund, it is going to be a perquisite for the employee. बराबर. एम्प्लॉय का व्यू पॉइंट खत्म. अब एम्प्लॉयर का व्यू पॉइंट सोचो. अच्छा, एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से दोनों सोचते. एम्प्लॉय बोलता है मेरे पैसे मैंने डाले तो उसका क्या? डिडक्शन ले लो 80 CCD का. उसका क्या मिलेगा? डिडक्शन. 80 CCD का डिडक्शन मिलेगा. कितना डिडक्शन मिलेगा? प्रीमियम पेड और इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी. बराबर है? हाँ, मेरे कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन मिलेगा. एम्प्लॉयर उसके पैसे मेरे फंड में डाल रहा है जिससे मुझे पेंशन मिलेगा. ये मेरा फायदा है. मेरा फायदा मतलब मेरे लिए क्या होता है? परक्विजिट. दिस इज अ परक्विजिट.
बराबर है। हाँ, ये फायदा मतलब ये क्या हो गया, परक्विजिट हो गया। इसके आगे जब अभी एम्प्लॉयर के व्यू पॉइंट से सोचते हैं, एम्प्लॉयर के व्यू पॉइंट से क्या होता है, जब एम्प्लॉयर पैसे डाल रहा है तो वो बोलता है अरे मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इससे किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को फायदा मिल रहा है, सो आई एम पुटिंग इट मनी, व्हाट हैपेंस विद दैट मनी, सो वी टेल हिम इट इज योर एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड, याद रखना लिमिट है, ज्यादा कंट्रीब्यूट मत करना, कंट्रीब्यूट मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। तो कितना कंट्रीब्यूशन करना, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, दैट्स व्हाट वी टेल द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अपनी जेब से पैसे डाल रहा है, किसको पैसे जा रहे हैं, एम्प्लॉई के फंड में जा रहे हैं, उसको पेंशन मिलेगा आगे जाके, तो हम उसको बोलते हैं हाँ फिर तुमको पैसे डालना है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, सही बात है, लेकिन कितना अलाउ होगा, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, एंड सैलरी फॉर दिस पर्पज इज बेसिक प्लस डीए इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंसिडर डीए एज अ पार्ट ऑफ सैलरी। क्लियर टू एवरीबडी? श्योर? ओके। हाँ, डिडक्शन 80CCD का थोड़ा सा अलग है, उसमें एम्प्लॉय के कॉन्ट्री के लिए भी डिडक्शन मिलता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री के लिए भी डिडक्शन मिलता है, दोनों के कॉन्ट्री का डिडक्शन मिलता है, बोथ इंडिविजुअली आर रेस्ट्रिक्टेड टू 10%, दैट मे बी आई विल कवर इट अप इफ वी आर डूइंग डिडक्शंस एंड देयर वी विल कवर इट अप 80CCD. Okay, so here in the notes it is very clearly given, employers contribution towards pension scheme referred to in 80CCD, maximum कितना होता है, 10% expenditure would be allowable, 10% maximum 10% of salary, उतना ही contribution up to that। अगर आपने contribution within the limit किया और कम किया तो कोई problem नहीं, that कम amount is your expenditure। आगे employers contribution towards हाँ, तो ग्रेचुटी फंड अगेन किसका कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, एम्प्लॉयर की, इज दैट गोइंग टू बी अलाउेबल, यस प्रोवाइडेड द फंड इज रिकॉग्नाइज अप्रूव। स्टूडेंट्स, एक कॉमन एडजस्टमेंट क्वेश्चन में क्या आता है, ग्रेचुटी का क्वेश्चन में दिया जाता है एक प्रोविजन, किया क्या दिया जाता है, प्रोविजन बनाया, provision of gratuity is not allowable, a mere provision of gratuity is not allowable, if you really genuinely pay gratuity we'll allow it। अरे नहीं तो ग्रेचुटी के नाम पे कोई भी PNL मैनिपुलेट कर पाएगा और टैक्स कम आएगा, फिर आप बोलोगे हाँ हमारे ना 4 एम्प्लॉयज़ है ना 10 साल के बाद रिटायर होने वाले, तो हमको आज अभी से ही प्रोविजन बनाना है, नो नो नो, mere provision is not allowed। हाँ, you have a approved fund and you actually shell out and put money into that fund, we'll allow that। So if you have an approved fund and you actually put money into that, we'll allow it। A mere provision of gratuity is not allowable। समझा? और ग्रेचुटी फंड में पैसा डाला तो फंड हैज टू बी अप्रूव एंड यू एक्चुअली पे ग्रेचुटी, देन वी हैव नो प्रॉब्लम, देन वील अलाउ द एक्सपेंडिचर, बट इट विल बी अलाउड व्हेन यू एक्चुअली पे इट। समझ में आ रहा है क्या सबको? ओके, नेक्स्ट क्या है? ओके, राइट ऑफ एनिमल अलाउंस मैंने बोला क्या? हाँ, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड स्टाफ वेलफेयर, क्या सिखाया मैंने पहले? एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड स्टाफ वेलफेयर पहले क्या होगा, इट विल बी फर्स्ट ट्रीटेड एज योर एम्प्लॉयर्स इनकम, मोमेंट यू कलेक्टेड इट विल बी एम्प्लॉयर्स इनकम, कलेक्ट किया तो इनकम होगा, जब पे करोगे तो विल ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर, है ना। व्हेन शुड यू पे दिस? विद इन द ड्यू डेट ऑफ द फंड। कौन सा फंड? स्टाफ वेलफेयर, जो स्टाफ वेलफेयर है उसकी ड्यू डेट के अंदर पेमेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? द पेमेंट शुड हैपन विद इन द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? श्योर? Write off of animal allowance. Now this is the difference between students in case you're using cattle for your business purpose. Now this is the way it is going to happen. When you buy a cattle or an animal, you must have bought it for say 20,000, but now when it's not of any use for you but somebody else wants to buy it और उसकी डेथ के बाद उसकी स्किन है या कुछ पार्ट्स है जो आपने सेल किया, आपको कुछ पैसे मिले, तो जो डिफरेंस आपका खर्चा हो गया, आपने 20,000 में खरीदा और आज आपको 5,000 मिल रहे, तो आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 15,000। इज दिस अलाउेबल? यस, it is allowable under section 36. It is called as write off of animal allowance. Clear to everybody? आगे, bad debts. Bad debts will be allowable expenditure if the following conditions are satisfied. ये मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, एक, there has to be a debt has to be bad, debt has already been considered as income. Now what is the best example of a debt having considered as income? Example is credit sales. जब आप credit sale की entry pass करते हो, you say debtors account debit to sales 2 लाख, मतलब 2 लाख आपको मिले नहीं अभी तक, आपने इनकम ट्रीट कर दिया, you didn't receive that 2 lakhs but you treated it as income। सेल्स कहाँ चला गया? P&L में चला गया।
बराबर है कि नहीं? सो इट इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सो दिस इज क्रेडिट सेल्स का एग्जाम्पल. बट आगे फ्यूचर में ये डेटर आपको पैसे देता ही नहीं है. द डेटर सेज नो नो, आई हैव बिकम बैंकरप्ट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मनी. सो इट डजंट गिव यू एनी मनी. देन व्हाट हैपेंस? then this is bad debts. You can go to his ledger and write it off. So when you genuinely know कि ये नहीं देने वाला है, उसके लेजर में जाके पर्टिकुलर डेटर ए बी सी कंपनी है तो ए बी सी के लेजर में जाके आप राइट ऑफ करते हो, देन दैट बैड डेट्स इज अलावेबल. अ mere provision for bad and doubtful debts is not allowable. RDD is not allowable. Actual bad debts are allowable. उसी तरह से जब बैड डेट्स रिकवर भी होते हैं ना स्टूडेंट्स, इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम. दिस इज डीम्ड बिजनेस इनकम, सेक्शन 41. यू नो व्हाट इज स्पेशल अबाउट द डीम्ड बिजनेस इनकम? I'm going to cover that today. सेक्शन 41 में इट इज स्पेशल बिकॉज बिजनेस एग्जिस्टेंस में हो या ना हो, बिजनेस बंद भी हो गया फिर भी डिसकंटिन्यू किया, 5-6 साल के बाद एक क्लाइंट आता है और बोलता है आई वाज ओइंग यू मनी, टेक दिस. देयर आर पीपल हु आर वेरी ऑनेस्ट, सो ही कम्स बैक एंड ही गिव्स इट टू यू एंड दिस इज योर बैड डेट्स रिकवर्ड एंड दिस विल बी बिजनेस इनकम, भले ही आपके पास बिजनेस अभी एग्जिस्टेंस में नहीं हो. समझ में आ रहा है क्या? आगे अच्छा एक नोट है, नोट यही है कि बैड डेट्स इज अलावेबल बट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नॉट अलावेबल. बैड डेट्स इज अलावेबल बट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नॉट अलावेबल. ओके. फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, एनी बोनाफाइड एक्सपेंडिचर, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अनदर एक्सपेंडिचर जो कॉर्पोरेट असेसी को ही अलाउ होता है. ये किसको अलाउ हो रहा है? सिर्फ कॉर्पोरेट असेसी को. तो फैमिली प्लानिंग का रेवेन्यू खर्चा हुआ, जनरल खर्चे हुए, रेवेन्यू रिकरिंग एक्सपेंसेस अलावेबल. बट कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ फैमिली प्लानिंग पे, देन इट इज अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. Students, we are on allowable expenses. We are on section 36 right now. Securities transaction tax and commodities transaction tax during the year are allowable expenditure. स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्सन शेयर्स का ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए शेयर्स खरीदना और बेचना हर टाइम उसको एसटीटी पे करना होता है. मोमेंट यू बाय शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और यू बाय कमोडिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, यू हैव टू पे STT. This STT or CTT is an allowable expenditure. It is an allowable expenditure. समझ में आ रहा है? हाँ. बट कैन यू टेल मी अगर यही STT कैपिटल गेन्स में होगा तो नॉट अलावेबल. हाँ, कैपिटल गेन्स के जब एक्सपेंसेस ट्रांसफर हम कैलकुलेट करते हैं, दैट टाइम दैट STT इज नॉट एन अलावेबल एक्सपेंडिचर. वेरी क्लियरली इट इज गिवन. बट बिजनेस प्रोफेशन में होगा तो STT पेड, आपके शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, यू आर डूइंग ट्रेडिंग इन शेयर्स, टू परचेज ऑफ शेयर्स, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ शेयर्स, बाय सेल्स ऑफ शेयर्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ शेयर्स, एंड वॉट एवर STT आपने इसके ऊपर पे किया है, आप ये इसको एक खर्चा करके ट्रीट कर सकते हैं. इट इज एन अलावेबल एक्सपेंडिचर. बराबर है? आगे. Okay, this is not there for your syllabus, nothing. I'll come to section 37. Now pay attention and understand. You know what happens here is all expenses from section 30 to 36, इनको क्या बोला जाता है? एक्सप्रेसली एक्सप्रेस किए गए, मतलब इनके लिए खास सेक्शन बनाया गया है. दैट इज वाई दे कॉल्ड एज एक्सप्रेसली अलावेबल एक्सपेंसेस. सो 30 to 36 के जो एक्सपेंसेस होते हैं दे कॉल्ड एज एक्सप्रेसली अलावेबल एक्सपेंसेस. मतलब उनके लिए खास एक्सप्रेशन है एक्ट में, मतलब खास उनका मेंशन किया गया है सेक्शन दे के. दीज एक्सपेंसेस आर अलावेबल एक्सपेंसेस. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट 30 to 36, क्या इतने ही एक्सपेंसेस अलावेबल होते हैं? नहीं, हम इससे बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं. लाइक सैलरी देते हैं स्टाफ को, जेरोक्स एक्सपेंसेस होता है, लाइट बिल एक्सपेंसेस होता है, ऑफिस के कुछ खर्चे होते हैं, लॉट ऑफ मेनी अदर एक्सपेंसेस दैट आई नीड टू इनकर. दीज ऑल बिकम अलावेबल अंडर जनरल डिडक्शंस कवर्ड अंडर सेक्शन 37. So 37 becomes a very very important section for us because majority of the expenses become allowable under section 37. Now what is this 37? Let's understand. Now section 37 में allowable होने के लिए कुछ conditions होते हैं जो आपको satisfy करने होते हैं. So you have to satisfy certain conditions. Now what are these conditions? One, it should be not a capital expenditure. अच्छा, ये मैंने आपको बेसिक में सिखाया है ऑलरेडी. हाँ, कैपेक्स नॉर्मली अलावेबल नहीं होते, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए. दूसरा, इट शुड नॉट बी नॉट पर्सनल, इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर. थर्ड, इट शुड बी इनकर्ड इन द रेलेवेंट PY. अच्छा, 10 साल पुराने कोई खर्चे नहीं चलेंगे. इट शुड बी इनकर्ड इन द रेलेवेंट PY. इस साल का खर्चा है तो इस साल अलाउ होगा. कोई 10 साल 2 साल पुराना 1 साल पुराना भी खर्चा नहीं अलाउ होता है.
यू नो इफ यू आर फॉलोइंग ड्यू बेसिस देन द खर्चा विल बी अलाउड ऑन ड्यू बेसिस. हाँ, कैश सिस्टम कर रहे हो तो ठीक है, फिर पेमेंट बेसिस पे अलाउ हो जाता है. सो इट शुड बी इनकर्ड इन द रेलिवेंट पीवाई. इट शुड बी इनकर्ड होली एंड सोली फॉर योर बिजनेस पर्पस. ये क्यों इनकर करना चाहिए आपने? होली एंड सोली फॉर बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए. सो दिस शुड बी इनकर्ड होली एंड सोली फॉर बिजनेस पर्पस. बराबर है कि नहीं? तो होली एंड सोली बिजनेस पर्पस के लिए इनकर होना चाहिए. आई नीड टू ऐड दिस, इट शुड बी लीगल इन नेचर. ये लीगल इन नेचर नहीं ऐड किया तो अंडरस्टैंड, ब्राइब्स वगैरह जो आप पे करते हो दैट बिकम्स अलाउेबल. सो आई गिव अ ब्राइब टू सम ऑफिसर टू गेट अ डील, यू नो टू गेट अ डील डन, या गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो मैंने ब्राइब दे दिया, या इनकम टैक्स ऑफिसर को ब्राइब दे दिया, तो यू नो इट सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशंस. Is it my personal kharcha? No. Is it a capital expenditure? No. It has to be done. It's a recurring expenditure. Then is it relating to my business? Yes, it is for business purpose. It satisfies all these conditions. Is it incurred in the relevant PY? Yes. Then that bribe and everything becomes allowable. But it was very late in the Finance Act 98 में है क्या? Yeah, so it was an amendment that came, yes. Finance Act 1998 got this amendment retrospectively backdated कि ये जो खर्चा है it should be legal in nature. This expenditure should be legal in nature and that is why illegal expenses are not allowable. अच्छा, क्योंकि हम illegal expenses की बात कर रहे हैं, जल्दी से समझ के लो, what about illegal income? टैक्सेबल? यस. हाँ, एनी इट विल बी टैक्सेबल. इलीगल इनकम होगा तो भी इट विल बी टैक्सेबल. अच्छा, क्योंकि वो इलीगल है तो पनिशमेंट्स मिलेगी. हाँ, पनिशमेंट मिलेगी. हर डिपार्टमेंट अपना शेयर लेगा. इनकम टैक्स बोलेगा हमारा इनकम है तो 30% हमको. फिर दूसरा डिपार्टमेंट होगा वो बोलेगा कस्टम्स, जैसे आपने इलीगल कुछ स्मगलिंग किया तो वहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी लगेगी. तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट अपना शेयर लेता है. इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल. बराबर है? हाँ. Now, this is section 37. Students, under section 37, it is like a residuary expenditure. जो भी सबसे important of course इसका condition है पहला वाला, expenses not covered under, हाँ, expenses not covered under 30 to 36. Now, for example, I'll tell you, scientific research. Is it already covered from 30 to 36? Yes, there's a separate section for it. What is that section? 35. हाँ, तो वापस से उसको 37 में एंट्री मिलेगा क्या? नहीं. अरे क्यों इधर जनरल में क्यों आ रहे हो? तुम्हारे लिए खास अलग प्रोविजन बना हुआ है, उधर जाओ. डेप्रिसिएशन, डोंट कम टू 37. खास प्रोविजन बना हुआ है, उधर ही चले जाओ. व्हेन एन एक्सपेंडिचर डज नॉट गेट कवर्ड अंडर 30 to 36 बट यू फील इट्स रिलेटेड टू बिजनेस, इट्स नॉट पर्सनल, इट इज नॉट कैपिटल इन नेचर, इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ द जनरल डिडक्शन 37, तो वहाँ अलाउ हो जाएगा. तो मेजॉरिटी एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स लाइक यू नो ट्रैवलिंग फॉर ऑफिस पर्पज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ को एंटरटेनमेंट अलाउंस देना, गेस्ट हाउस मेंटेनेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स. न्यू ईयर इज देयर, न्यू ईयर डायरीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू योर क्लाइंट्स. आपके ऑफिस के लोगो डाल के आपने डायरीज डिस्ट्रीब्यूट किया. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ऑल दिस बिकम्स एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर. इट गेट्स कवर्ड अंडर जनरल डिडक्शन दैट इज सेक्शन 37. लाइक आपको लोन के लिए अप्लाई करना है बैंक में, लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपने कुछ खर्चा किया, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अरेंजिंग अ लोन, अलाउेबल, वेरी मच अलाउेबल. इफ इट इज फॉर बिजनेस पर्पज इट इज वेरी मच एंड अलाउेबल. कैपिटल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए. एंड इट इज नॉट कवर्ड अंडर 30 to 36, because if it gets covered under 30 to 36, go to that section and follow that. So majority gets covered here. There are two specific expenses that you should keep in mind which section 37 says sorry हम allow नहीं करेंगे. एक है CSR expenses. CSR is what is CSR? Corporate Social Responsibility. You must have studied this in the Companies Act. Companies, there are certain classes of companies which need to do charity towards certain percentage of their profits. ये जो profit चैरिटी करना कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट. दे हैव टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स ऑन डूइंग सोशल कॉजेज. ओके, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स टूवर्ड्स द सोसाइटी. तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए उन्होंने कहीं स्कूल कंस्ट्रक्ट किया, स्कूल में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म दिए. तो अभी अकाउंटेंट पूछता है ये जो मेरे CSR के खर्चे आई डोनेटेड
books to school, I distributed uniforms and many other expenses. So should I debit it to P&L? Is it an allowable expenditure? So we tell him no, it is not an allowable expenditure. हाँ, if you feel it gets covered under anything between 30 to 36, by chance cover होता है तो उधर claim कर देना, but 37 general में तो नहीं होता है, normally 30 to 36 में भी ये cover नहीं होते, तो CSR expenses are not allowable. Now I can simply say that CSR का खर्चा मुझे करना ही पड़ा क्योंकि एक्ट या स्टैट्यूट का रिक्वायरमेंट है. आई नो दैट, बट दैट इज कंपनी एक्ट का. बट इनकम टैक्स एक्ट से सॉरी दैट CSR expenditure will not be allowable. Is that clear to everybody? Yes. So what have I done? I have covered your concept 2 which talks about allowable expenses. So what have I covered? Concept 2 which talks about allowable expenses. Is that clear to everybody? Yes. So I'll move on to disallowable expenses, that is a concept 3. Yes. So one minute. First, what is the hint for allowable expenses? आप किस तरह से वर्किंग करोगे अगर अलावेबल एक्सपेंसेस है. P&L में अगर कोई भी खर्चा आता है, टू डिसाइड वेदर इट इज अलावेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट और नो, यू हैव टू फॉलो वन थिंग. चेक, ट्राई एंड रिकॉल, इज दिस एक्सपेंडिचर कवर्ड अंडर 30 to 36? If it is covered, follow that. Like donation given for scientific research, preliminary expenses allowed to be written off over 5 years. So if these are covered, then go to 30 through 36, that particular section, follow its provisions and allow it. बराबर है. Now if it is not covered under 30 to 36, then check for section 37. तो hint for allowable expenses में 2 points है. 1, check first for section 30 to 36. क्या? Check first for section 30 to 36. And if it is not going in that, then check for section 37. General principles और logic apply करो. फिर उसके हिसाब से if you feel it's related to business, it is allowable. If it is not related to business, it will not be allowable. समझ में आ रहा है सबको? Yes? Okay. Now I'll come to disallowable expenses. Disallowable में हाँ ये एक है advertisement expenditure. So advertisement expenditure in any souvenir, brochure, pamphlet. किसका है ये brochure और pamphlet? Political party का. This is not an allowable expenditure. So if you do advertisement in any brochure or a pamphlet of a political party, it's not allowable. हाँ, but ऐसे ही कोई local magazine है, कोई दूसरा brochure print हो रहा है, उसमें आपने आपका ad दे दिया और वोट सर्कुलेट हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, दैट्स एन अलावेबल एक्सपेंडिचर. बट प्रोवाइडेड दिस ब्रोशर और दिस बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी, देन दिस इज नॉट एन अलावेबल एक्सपेंडिचर. ऑफकोर्स, व्हाट कैन यू शो इट एज? Yes, we can show that we have given a contribution to political party. There is a separate deduction under chapter 6 wherein I can say that I have given this as a deduction, and where you show this is a deduction, you can claim 80GGC or 80GGB. तो आप 80GGB या 80GG कौन सा है, 80GGB या 80GGC का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. जितना डोनेशन देते हो उतना आपको डिडक्शन क्लेम आप कर सकते हो. दैट इज एलिजिबल अमाउंट. सही है क्या? हाँ, दिया तो इट्स अलावेबल. किसी ने न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स डाले, डिस्ट्रीब्यूट किए, या किसी और इंस्टीट्यूशन की ब्रोशर बना, पैम्पलेट बना, उसमें दिया एडवर्टीजमेंट, तो इट्स अलावेबल. लाइक यहाँ पे अगर जोशी एकेडमी का ब्रोशर प्रिंट हो रहा है तो किसी हॉस्टल ने अपना ऐड दे दिया तो उनका एडवर्टीजमेंट आ गया, देन इट्स एन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर देम. It will not be allowable if that brochure belongs to a political party. That's all. समझा? Everybody? Sure? Okay. The first, I'll go in sequence now. First, I'll explain it to you. Okay? मैं लिख के कुछ explain करती हूँ, फिर अगर चाहिए तो नोट से पढ़ लेंगे हम लोग. See, disallowable expenses 40 small a, 40b, 40a2, 40a3, 40a7, 40a9 एंड 43b. तो कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल वाले हैं, इजी सिंपल थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, सेक्शन नंबर नहीं याद आया तो चलेगा, है ना.
बट अभी बाय चांस आपको 3-4 तो बहुत फ्रीक्वेंटली है, तो है, इट्स बेटर दैट यू नो इंपॉर्टेंट वन सेक्शंस, यस यू मस्ट नो. सो नाउ द फर्स्ट वन इज व्हाट, 40A. पहला क्या है, 40A. ना 40A में क्या हो रहा है, 40A में क्या क्या अच्छा हम अभी क्या सीख रहे हैं, कौन से खर्चे डिसअलावेबल है. तो 40A में कौन से खर्चे डिसअलावेबल है. पहला, इनकम टैक्स. Is income tax an allowable expenditure? Not at all. Income tax that you pay is not an expenditure. It's like an appropriation of profit. Profit में से आपको कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है. It is an disallowable expenditure. इसीलिए इनकम टैक्स भी अलावेबल खर्चा नहीं है. इनकम टैक्स की जगह एडवांस टैक्स आ गया तो भी डिसअलावेबल. व्हाट इज एडवांस टैक्स? इनकम टैक्स पेड इन एडवांस. सो इनकम टैक्स इज नॉट अलावेबल, एडवांस टैक्स इज नॉट अलावेबल. अर्लियर ना वेल्थ टैक्स वॉज ऑल्सो डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर. Wealth tax now has been abolished. On the wealth, on the properties, jewelry that you have, you had to pay some tax. Not on the income that you earn, but the wealth that you have created, we had to pay wealth tax. Now that wealth tax has been abolished, we do not have wealth tax. Now we have just income tax. It's not an allowable expenditure. So income tax is not an allowable expenditure. Just like income tax, we also have a concept of advance tax. Next is payments without TDS. पेमेंट्स विदाउट TDS. इसमें क्या याद रखना है आपको, अलग अलग क्या प्रोविजंस याद रखनी है इसमें. पेमेंट विदाउट TDS. स्टूडेंट्स ना दो चीज़ें आपको याद रखनी. एक, आपको TDS कट करना मैंडेटरी है. TDS की प्रोविजंस है, TDS के चैप्टर में हमने सीखा है दैट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जहाँ पे आपको TDS कट करना कंपलसरी होता है. नाउ आई हैव टू डिडक्ट TDS. इफ आई डोंट, नॉट ओनली दैट, डिडक्ट करके जेब में नहीं रखना है, डिडक्ट करके आई हैव टू पे इट विद इन द ड्यू डेट. नाउ व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर पेइंग TDS? एज पर TDS प्रोविजन देयर इज सेक्शन 200. कौन सी प्रोविजन बोल रही हूँ? TDS चैप्टर की प्रोविजन. TDS चैप्टर की जो प्रोविजन है इट इज अंडर सेक्शन 200 विच सेज कि TDS जो आप कलेक्ट करते हो मंथ टू मंथ हमको दे दो. एक्चुअली वो क्या है? टैक्स के पैसे. टैक्स के पैसे किसको बिलोंग करते हैं? गवर्नमेंट को. पेड टू द गवर्नमेंट इमीडिएटली, मंथ टू मंथ इट हैज टू गो टू द गवर्नमेंट. सो यू हैव टू पे दैट TDS बाय 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. ठीक है, ठीक है. अभी मैंने अकाउंटेंट को पूछा, CA को फोन किया, अरे ये TDS मंथ टू मंथ पे करना है. हमारे यहाँ अकाउंटेंट की गलती हो गई, हमने TDS कट कर दिया लेकिन 2 महीने का हमने भरा ही नहीं है गवर्नमेंट को. अच्छा ठीक है चलो, देन द CA सेज कोई बात नहीं है, 2 महीने लेट भर दिया तो इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट लगेगा, यस 1% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा. तो CA बोलते ठीक है इतना ही. हाँ लेकिन याद रखना, ये जो TDS तुम पे करना भूल गए हो, रिटर्न के ड्यू डेट के पहले तो फाइल करना ही पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा. अगर रिटर्न फाइलिंग के पहले पे नहीं किया देन द एक्सपेंडिचर बिकम्स अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर. हाँ वो बोलते ठीक है तो मैं आराम से बाद में पे करूँगा. तो मैं ऐसे ओके आराम से बाद में पे करोगे, मतलब इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट तो लगेगा ही, प्लस ये खर्चा डिसअलावेबल होगा अगर ड्यू डेट तक पे नहीं किया तो TDS कट करो एंड पे इट विद इन द ड्यू डेट ऑफ द TDS प्रोविजन. अच्छा वो फॉलो नहीं करते हो तो पनिशमेंट कब मिलेगी? रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक पैसे जमा नहीं हुए तो. अरे रिटर्न फाइल कर रहे हो, ईयर फाइनलाइज कर रहे हो, सब क्लोज कर रहे हो, पे योर टैक्सेस एंड फिनिश इट ऑफ, डोंट कीप देम पेंडिंग. Correct? Are you understanding this? Yeah. So without TDS, now it depends upon किसको पेमेंट कर रहे हो, मतलब who is the payee, मतलब who is the payee. अगर आप जिसका TDS कट कर रहे हो, okay, is a NR. So if the person, the payee is an NR, now payment without TDS और TDS not paid, दोनों के लिए पनिशमेंट मिलेगा. TDS not paid till when? 139(1). What is 139(1)? What is, some sections are important, you must know them. What is 139(1)? Due date for filing the income tax return. So ये 139 के ड्यू डेट में आपको पेमेंट करना है. Now if the payee is an NR, 100% expenditure disallowable. And if the payee is a resident, then 30% expenditure shall be डिसअलावेबल. कितना एक्सपेंडिचर डिसअलावेबल होगा? 30%. 100% एक्सपेंडिचर डिसअलावेबल इफ पेई इज NR एंड पेई अगर रेसिडेंट है तो कितना खर्चा डिसअलावेबल होगा? 30% एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलावेबल. बराबर है कि नहीं? यस. सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जहां पे क्वेश्चन में दिया जाएगा 2 मिस्टेक्स.
कौन सी दो मिस्टेक्स अलाउड नहीं है, तो खर्चा डिसअलावेबल हो जाएगा, 40A आ जाएगा। एक, यू मेड पेमेंट्स विदाउट डिडक्टिंग TDS। 2, you deducted TDS, then you did not pay it within the due date of section 139(1). What is 139(1)? 139(1) is the due date for filing the income tax returns under the Income Tax Act. Is that clear to everybody? Sure? Okay. So 100% expenses disallowable and 30% expenses disallowable. If you pay salary to an, अच्छा ये होता क्या है ना, एक और चीज सुनो, मैंने 139(1) के बाद पे किया TDS, तो बाद में ये खर्चा अलावेबल होगा? हाँ, बाद में ये खर्चा अलावेबल होगा। हाँ, जितना डिसअलाउ हुआ था बाद में अलाउ हो जाएगा। अगर 100% डिसअलाउ हुआ था तो बाद में कितना अलाउ हो जाएगा? 100%। पहले अगर 30% डिसअलाउ हुआ था तो बाद में कितना अलाउ हो जाएगा? वो 30% अभी अलाउ हो जाएगा। क्यों अलाउ हो जाएगा? क्योंकि जिसकी वजह से मुझे पनिशमेंट मिली, मैंने वो काम पूरा कर दिया। क्या काम पूरा कर दिया? आई हैड टू पे दैट TDS। ओ, आई डिडंट पे इट विद इन द ड्यू डेट, मैंने ड्यू डेट के बाद पे किया, तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। तो बाद में ये खर्चा अलाउ होगा, बाद में, अभी नहीं। करेक्ट? बट इन केस ऑफ सैलरी पेड टू अ NR, सैलरी पेड टू अ नॉन रेसिडेंट और पेड टू अ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो अगर आप सैलरी किसी NR को पे करते हो या यू पे द सैलरी टू अ पर्सन हु इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, देन देर इज अ परमानेंट डिसअलाउंस इफ यू डू नॉट डिडक्ट TDS, do not deduct, do not pay, all that stuff, then there is a permanent disallowance. I think I'm giving you that in the notes, हमने लिखा है, there is a permanent disallowance. We are still on what section? I'm still on the first section that I'm teaching you, that is 40A. Now see here, अगर NR है तो कितना खर्चा डिसअलाउ होने वाला है? 100% of the expenditure will be disallowed. However, expenditure will be allowed in the year in which the tax is actually paid. लेकिन पहले अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी and 100% expenditure will be disallowed. Is that clear to everybody? ना इंटरेस्ट कमीशन ब्रोकरेज, अभी ये देखो किसको पे कर रहे हैं हम लोग, ये नेक्स्ट वाला पार्ट, इंटरेस्ट कमीशन ब्रोकरेज। आई एम पेइंग दिस टू हुम? अ रेसिडेंट। ओके, सो हियर हु इज द पेई? दिस इज पेएबल टू अ रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट है तो कितना खर्चा डिसअलाउ होता है? 30% इज डिसअलाउ। दिस इज द डिसअलाउंस अंडर विच सेक्शन डियर स्टूडेंट? सेक्शन 40A, 40 स्मॉल a, 40A के अंडर ये डिसअलाउंस होता है। आगे, सैलरी पेड और पेएबल आउटसाइड इंडिया, दिस इज अ परमानेंट डिसअलाउंस। बस ये परमानेंट डिसअलाउंस है। एक तो इतना इंपॉर्टेंट, सैलरी जैसे पेमेंट करते हो, TDS कट नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। इट विल बी अ परमानेंट डिसअलाउंस एंड इट सैलरी इज गोइंग आउटसाइड इंडिया ऑल्सो ना, वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर टैक्स फ्रॉम दीज पीपल देन। इसलिए NR के लिए ज्यादा पनिशमेंट है। लॉजिक क्या है? वेयर इज द मनी गोइंग? आउटसाइड इंडिया। पहले तो आई टेल यू द लॉजिक ना, यू अंडरस्टैंड बेटर व्हेन यू नो द राइट फ्रॉम द हिस्ट्री। पहले 40 है ना, सिर्फ NR के पेमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। पहले पनिशमेंट अगर रेसिडेंट को पे किया तो मिलती नहीं थी। पनिशमेंट वॉज ओनली व्हेन यू मेड पेमेंट्स टू NR विदाउट TDS, तो 100% डिसअलाउंस। फिर सोचा नहीं, चलो ये रेसिडेंट्स के लिए भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बट वहां पे पनिशमेंट सिर्फ 30% देंगे। समझा क्या? ना टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, ये जरा बताओ मुझे। ये सैलरी में भी कंसेप्ट था, मैंने तभी नहीं कवर किया, बट आई न्यू इट्स कमिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, सो आई डू इट हियर टुगेदर। सो टैक्स ऑन, इसके ऊपर है ना, कभी थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बट थ्योरी है, MCQs है, तो आपको ये पता होना चाहिए अभी, बराबर है? हाँ। सो टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट क्या हो रहा है एग्जैक्टली? स्टोरी क्या है? इमेजिन द स्टोरी फर्स्ट। व्हाट इज द स्टोरी ओवर हियर? व्हाट इज हैपनिंग? Correct. Correct. What he's saying is right. Employer is paying what? Employer is first giving you a non-monetary perquisite. Non-monetary perks दे रहे हैं तुमको, ठीक है? पर्क्स देना है तो दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन मॉनेटरी पर्क्स मतलब आपने रेंट पे घर ले लिया, रेंट पे कर रहे हो उसका, और घर किसको दे दिया रहने को? एम्प्लॉय को। रेंट तो कंपनी पे कर रही है। इज इट अ खर्चा? यस, इट इज अ खर्चा। बट इस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स आने वाला है। ऑफकोर्स अकोमोडेशन इज अ टैक्सेबल परक्विजिट। इसका टैक्स तुम कैलकुलेट करके एम्प्लॉय को बोलते हो डोंट वरी,
हम घर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड जो भी टैक्स लायबिलिटीज आएगी, टैक्स इम्प्लीकेशन होंगे, हम ही देखेंगे। देखो फिर तुम उसका टैक्स भी पे करते हो। हु इज पेइंग द टैक्स? एम्प्लॉयर। इज इट अ खर्चा? मतलब उसके हिसाब से खर्चा है क्या? हाँ, उसकी जेब से पैसा जा रहा है। किसका टैक्स पे कर रहा है? एम्प्लॉय का। नॉट अलाउड एज अ खर्चा, disallowable expenditure and it's a exempt perquisite in the hands of employee। शायद अभी आपको लॉजिक थोड़ा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, इसका लॉजिक समझ में आता है, तो देख लो एक बार, ट्राई करो। वन पर्सन, सी एम्प्लॉयर ने, सपोज लेट्स अज्यूम एम्प्लॉयर पेड 10,000। क्या पे किया? 10,000 टैक्स। कौन सा टैक्स? ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। किसका टैक्स पे किया? एम्प्लॉय का। कितना टैक्स पे किया? 10,000। बराबर है। कौन से परक्विजिट्स? नॉन मॉनेटरी। एम्प्लॉयर के लिए ये अलावेबल खर्चा है या डिसअलावेबल खर्चा है? डिसअलावेबल खर्चा है बिकॉज ऑफ सेक्शन 40A। अच्छा, डिसअलावेबल खर्चा मतलब हम क्या करते हैं? 10,000 हम एड बैक करते, उसका इनकम 10,000 से बढ़ जाएगा। वो 10,000 से इनकम बढ़ जाएगा मतलब उसने 10,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स ना जनरली डबल टैक्सेशन नहीं करती है। इनकम टैक्स बोलती है इसके ऊपर 10,000 जो टैक्स है ना, 10,000 का अमाउंट है ना, हमने किससे टैक्स ले लिया? एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉय तुम मत अभी टैक्स पे करना, के लिए ये एग्जम्प्ट परक्विजिट होगा, तुम्हारे लिए ये क्या होगा? एग्जम्प्ट परक्विजिट होगा, तुम मत टैक्स पे करना इसके ऊपर। फॉर यू इट विल बिकम अ एग्जम्प्ट परक्विजिट। इफ इट्स उल्टा, ध्यान दो ध्यान दो, अगर ये मॉनिटरी परक्विजिट का टैक्स होता, एम्प्लॉयर ने पे किया, अलावेबल खर्चा, यस, एम्प्लॉयर बोलता थैंक गॉड मेरा खर्चा अलाउ हो गया, आई विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। देन हु विल पे द टैक्स? एम्प्लॉय। तुमको फायदा मिला, एड इट एज परक्विजिट, पे टैक्स ऑन इट। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर, हमको तो टैक्स कलेक्ट करना है। सिर्फ नॉन मॉनिटरी पे वी हैव शिफ्टेड दिस बर्डन ऑन द एम्प्लॉयर। सो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स का टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे करता है, इट इज अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर, विल नॉट ट्रीट इट एज एक्सपेंडिचर, यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। एंड एम्प्लॉय के हैंड में वापस परक्विजिट भी ऐड होगा? नहीं नहीं नहीं, एम्प्लॉय के हैंड्स में एग्जम्प्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई टेल यू सर्टेन थिंग्स, यू नो इट बिकम्स डिफिकल्ट। अरे मॉनिटरी के लिए टैक्सेबल था या नॉन मॉनिटरी या क्या था, एग्जम्प्ट है कि टैक्सेबल? सो लॉजिक से जाना। एक तो तुम नॉन मॉनिटरी परक्विजिट दे रहे हो, उसका टैक्स भी दे रहे हो, तो सॉरी ये खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, तुम्हारे लिए खर्चा नहीं है तो एम्प्लॉय को भी टैक्स पे करने लगाओगे क्या? नहीं, एक से रिकवर करेंगे। एम्प्लॉय तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। समझा क्या? क्या समझा? टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पेड बाय एम्प्लॉयर विल नॉट बी अलावेबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40। खर्चा अलावेबल नहीं मतलब क्या रे? इनकम में ऐड होता है। इनकम में ऐड होता है मतलब कौन टैक्स पे करता है? एम्प्लॉयर। बराबर? समझा क्या? यस। हाँ, ऐड होता है, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। मॉनिटरी परक्विजिट पे टैक्स पे किया, आपको अगर क्वेश्चन में आता है एम्प्लॉयर पेड एम्प्लॉइज टैक्स, you do not know it's monetary or non-monetary, don't make normal assumption, that means it is a perquisite, it's a faida, add it in the hands of the employee. If it is specifically given employer paid employees tax on non-monetary perquisites, then that is exempt in the hands of the employees and it gets indirectly taxable in the hands of employer because it is a disallowable expenditure. किधर डबल हो रहा है? नहीं, अलावेबल एक्सपेंडिचर है या हाँ, तो एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर, द टैक्स इज द एक्सपेंडिचर, खर्चा हो गया ना। हाँ यस, तो एक जगह खर्चा हो रहा है और उस पे टैक्स आ रहा है। हाँ, एक जगह वो खर्चा करके अलाउ हो रहा है ना, बेनिफिट है। क्या क्या? एम्प्लॉयर का इनकम, हाँ, में से खर्चा करके लेस होता है। खर्चा क्लेम कर दिया मतलब आपने टैक्स पे नहीं किया, आपने खर्चा अलाउ कर दिया मतलब मेरा इनकम
कम हो गया, तो एम्प्लॉयर बोलते हैं मैं तो टैक्स से बच गया। अभी इनकम टैक्स किससे रिकवर करेगी टैक्स? एम्प्लॉय से। कैसे? एडेड इन हिज इनकम एज अ परक्विजिट, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। समझा क्या? पक्का? हाँ। कंक्लूजन, एम्प्लॉयर पेज टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी perquisites is a disallowable expenditure under section 40A and it's exempt perquisite in the hands of the employee. I have covered this. A table is given to you in the chapter of salary, but I didn't do it that time because I wanted to teach both the viewpoints. तो यहाँ पे अच्छे से समझा वो। Done है? पक्का? I'll go ahead then. 40A हो गया क्या? देखो एक ही पार्ट बचा है 40A का। इनकम टैक्स बोल दिया, वेल्थ टैक्स बोल दिया। Now listen, you know this last one is any royalty license fees paid. Last वाला is any royalty license fees paid by government undertakings to the government. Government undertakings मतलब गवर्नमेंट की कंपनीज होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ स्टेक होता है, उनको भी टैक्स की चोरी करनी है। अभी क्या करते थे वो लोग क्या करते थे? डिविडेंड दे दिया गवर्नमेंट को, शेयर्स होते हैं सबके, हाँ, तो गवर्नमेंट इज हैविंग शेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट इज हैविंग शेयर्स इन दैट कंपनी। मोमेंट आई से डिविडेंड, कंपनी विल हैव टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बराबर? तो कंपनी बोलती है जाने दो ना, कौन बोलेगा डिविडेंड है? ऐसा दिखाएंगे हमने स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी दिया, उनकी सर्विसेज यूज़ की, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया, उनको रॉयल्टी दिया। Then we said no, then such royalty is not going to be allowable if you're doing it with the intention of saving DDT, dividend distribution tax. So rationale, to avoid dividend distribution tax and to pass on the income to state government, several state government undertakings are passing on the income to the government in the form of royalty, services and etc. This clause intends to stop the same. So it says sorry, this expenditure is not allowable. समझ में आ गया क्या? पक्का? तो कौन सा सेक्शन हो गया अभी? 40A। क्या क्या डिसअलावेबल है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एडवांस टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स अलावेबल है। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट कवर्ड हियर, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट कवर्ड हियर। अगेन, सो स्टार्ट विथ 40A की लिस्ट। व्हाट इज डिसअलाउड? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सैलरी, ओके, पेमेंट्स डन विदाउट TDS, और TDS इज डिडक्टेड बट नॉट पेड विद इन कौन सा ड्यू डेट? नॉट पेड विद इन द ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 139(1). 139(1) मतलब क्या? फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। अगर एनआर को पेमेंट कर रहे हो तो 100% डिसअलावेबल, रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो 30% डिसअलावेबल। आगे जब आप पेमेंट बाद में करोगे तो ये खर्चा अलाउ होगा। हाँ, एक ही जगह परमानेंट डिसअलाउंस है। व्हेन सैलरी इज पेड टू अ एनआर, इट इज अ परमानेंट डिसअलाउंस। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? देन tax paid on non-monetary perquisites by the employer is a disallowable expenditure under section 40A. Royalties paid to avoid dividend distribution tax by government undertaking companies to the government is a disallowable expenditure under section 40A. 40A हो गया? पक्का? श्योर? हाँ, सब जगह। ओके, नेक्स्ट सेक्शन दैट आई एम गोइंग टू डू, पे अटेंशन। 40B, क्या क्या सेक्शन है मुझे बताओ? 40a ये हो गया, फिर क्या है? 40B, अभी ये करेंगे। फिर होता है 40A2, पहले रिलेटिव्स, फिर कैश। 40A2 रिलेटिव्स का पेमेंट, 40A3 इज कैश पेमेंट। 40A7 और 40A9 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्रोविजन सिर्फ आपने पता रखी तो भी चलेगा, बस ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शंस। इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द नंबर नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। देन कम्स 43B, ठीक है क्या? हाँ, अब सुनो 40B क्या है? 40B, हाँ, ये सुनना, कौन पे कर रहा है, हम किसके व्यू पॉइंट से सीख रहे हैं? 40B किसके व्यू पॉइंट से सोच रहे हैं? फर्म के। किसके व्यू पॉइंट से सोच रहे हैं? फर्म के। यहां पे कौन पेमेंट कर रहा है? फर्म। फर्म पेज व्हाट? इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन एंड इट ऑल्सो गिव शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। फर्म क्या क्या पेमेंट करती है पार्टनर्स को? पार्टनर्स को फर्म से क्या क्या मिलता है? ये 3 चीजें। क्या 3 चीजें? इंटरेस्ट, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या क्या मिलता है? इंटरेस्ट, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट।
मैं फर्म इज पेइंग मतलब फर्म का खर्चा, पार्टनर्स का इनकम। शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में वैसे नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। सुनो, जो पार्टनरशिप फर्म की पीएनएल है, सपोज ये एक फर्म का पीएनएल है, ध्यान से सुनना, इसका नेट प्रॉफिट है 4 लाख। इस 4 लाख के ऊपर टैक्स कौन पे करता है? हु पेज टैक्स ऑन दिस? फर्म। अरे इसलिए तो अलग एंटिटी बनाई है ना। फर्म को आइडिया आता है, अरे फर्म बोलता है फ्लैट रेट ऑफ 30% टैक्स। कितना टैक्स? 30%। फर्म के लिए टैक्स रेट क्या है? 30%। 4 लाख पे 30%, 1,20,000 टैक्स प्लस 4% सरचार्ज, ये सब इतना पे करना पड़ेगा टैक्स। चलो एक काम करते हैं, पार्टनर एक्स तुम 2 लाख सैलरी ले लो, पार्टनर वाई तुम 2 लाख सैलरी ले लो, फर्म का प्रॉफिट 0। पार्टनर बोलते हैं हाँ मेरी सैलरी कितनी? 2 लाख, बिलो बेसिक एग्जाम्पशन, नो टैक्स। पार्टनर वाई बोलता है मेरे को कितना सैलरी मिला? 2 लाख, बिलो बेसिक एग्जाम्पशन, टैक्स 0। इनकम टैक्स को आपको लग रहा है कि ऐसे ही वो लोग ऐसे ही आप ऐसे एडजस्टमेंट करोगे और वो लोग ऐसे ही ये कर देंगे, एग्री कर देंगे? बिल्कुल नहीं। देयर इज अ क्लॉज टू इट, दिस है एंटायर प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैलरी, देयर इज अ लिमिट कितना सैलरी देना है और कितना इंटरेस्ट देना है। नहीं तो लोग क्या करते, सारा प्रॉफिट अपने सैलरी के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते। बराबर है कि नहीं? तो फर्म, सुनो, अगर फर्म ने पार्टनर्स को यहाँ पे सैलरी दिया और इंटरेस्ट दिया और उसके बाद जो एनपी आया, ठीक है ना, फिर 4 लाख पे तुम टैक्स पे करो, फिर ये 4 लाख भी शेयर ऑफ प्रॉफिट करके डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वापस इस पे पार्टनर्स टैक्स पे करेंगे क्या? नहीं। एक बार इस प्रॉफिट पे किसने टैक्स पे किया? फर्म ने। पार्टनर्स के हैंड्स में इट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, इट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। Are you all understanding this? Sure? Okay. Now you must understand one thing here, salary and interest के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट कितना हम मैक्सिमम दे सकते हैं? 12%। कितना मैक्सिमम अलाउड होता है? 12%। अच्छा, इफ द पार्टनरशिप डीड सेज 9%, तो इनकम टैक्स कितना अलाउ करेगा? 9%। यू आर विद इन द 12% लिमिट। इफ द पार्टनरशिप डीड सेज 12%, इनकम टैक्स अलाउ कितना करेगा? 12। इफ द डीड सेज 15, इनकम टैक्स अलाउ कितना करेगा? 12%। अच्छा, पार्टनर्स को जब इंटरेस्ट मिलता है, वर्किंग नॉन वर्किंग से फर्क नहीं पड़ता है, वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो। अरे इंटरेस्ट का वर्किंग से कोई कनेक्शन नहीं है, तुम्हारे काम से कनेक्शन नहीं है, तुम्हारे कैपिटल बैलेंस से कनेक्शन है। You put in money, you will get interest. You have a capital in the firm, you will get interest. Firm is paying the interest. Firm के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम। पार्टनर के लिए इनकम अंडर विच हेड? PGBP. Interest and salary that a partner receives is covered under section 28. कल ही सिखाया section 28. So it is covered under section 28. So interest and this partner's salary is going to be partner's income under the head profits and gains of business and profession. बराबर है क्या? हाँ, तो ये हो गया इंटरेस्ट की बात। अभी हम बात करेंगे रेम्यूनरेशन की। बराबर, रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म चाहे तो दोनों को दे सकती है, वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग, बट इनकम टैक्स बोलता है सॉरी, वी विल अलाउ सैलरी पेएबल ओनली टू अ वर्किंग पार्टनर एंड दैट टू विद इन अ लिमिट। ओके, तो सैलरी क्यों दी जाती है? लॉजिकल है, बिकॉज फॉर डे टू डे वर्किंग। हु इज द वर्किंग पार्टनर? इज ओनली द डे टू डे वर्किंग। स्लीपिंग पार्टनर जो ऐसा होता है, या डॉर्मेंट पार्टनर इज अ पार्टनर हु जस्ट पुट्स इन कैपिटल इनटू द फर्म. He is not taking care of day to day activities of the firm. So he is a dormant partner. He is not allowed to take any salary. He is not allowed to take any salary. बराबर है? So now here let's understand. Whenever the firm pays salary, remuneration, commission, okay, it is allowable subject to a maximum limit. आप limit के अंदर हो तो great. How much is the limit? Now we calculate that maximum salary. कैसे calculate होता है बताओ जरा मुझे. Book profit पे depend करता है. On the first 3 lakhs, first 3 lakhs which is a book profit, कितना allowed है remuneration देना? बोल 1,50,000 और 90% of book profit, whichever is higher, whichever is higher, whichever is higher. हम बोलोगे ऐसा कैसे बना है whichever is higher? 90% of 3 lakhs is always going to be higher. No, book profit कम भी हो सकता है. हाँ, तुमको समझेगा, उस टाइप की प्रॉब्लम्स है, यू विल अंडरस्टैंड दैट. Let me just finish the theory and then I'll do the problems. That time you will understand all this. So first 3 lakhs पे कितना maximum remuneration देना allowed है? 1,50,000 और 90% of the book profit whichever is higher. On the next balance,
बैलेंस बुक प्रॉफिट कितना अलाउड होता है? 60%. 60% of book profit. Yes. So you can calculate the maximum remuneration. Suppose here the maximum remuneration. Okay. Now say book profit is 7,10,000. How would you calculate it? First 3 lakhs. 3 lakhs का 90% 270 और 1.5 लाख whichever is higher. तो 270. बचा हुआ 410. 410 पे कितना? 60%. मतलब कितना? 246. क्या रे? 516. Suppose here actual remuneration is 5 lakhs. तो आप अलाउ कितना करोगे? 5 लाख. It becomes allowable. But if the actual remuneration is 6 lakhs, so allowable is only 5,16,000 and the extra amount will become disallowable expenditure for the firm. If your actual is within the limit, no problem. If your actual is above the limit, then we have a problem. Again, how did we calculate? Understand that carefully. First 3 lakhs of the book profit. We calculate 150 or 90% of the book profit, whichever is higher. On the balance book profit, we calculate 60%. So I took an example where I said the book profit is 7,10,000. 7,10,000 में से first 3 lakhs पे we calculated 270, that is 90%, or 1,50,000, whichever is higher, comes to 270. On the balance 4,10,000, we calculated 60%, which is 2,46,000. So total आया 5,16,000. That's the limit. अब लिमिट के अंदर हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइक इफ योर एक्चुअल रेम्यूनरेशन इज 5 lakhs, then we'll allow 5 lakhs. But if it is like 6 lakhs, then sorry, we'll not allow 6 lakhs. Allowable expenditure would be only 5,16,000. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में है ऐसे क्वेश्चंस, अलग अलग मैं करवाऊंगी आपको. ठीक है, डन है क्या? फर्म्स एक्सपेंडिचर बिकम्स पार्टनर्स इनकम. फर्म का क्या खर्चा है? सैलरी और इंटरेस्ट. किसका इनकम है? पार्टनर्स का. वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम. बराबर है? हाँ. सिर्फ याद रखना, शेयर ऑफ प्रॉफिट पे टैक्स कौन पे करता है? फर्म. तो उस प्रॉफिट पे वापस पार्टनर्स टैक्स पे करेंगे क्या? नहीं. इट इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स. आर यू ऑल ओके विद दिस? श्योर. आगे नेक्स्ट, कमिंग टू आवर सेक्शंस, जस्ट हैव अ लुक हियर. तो 40A हो गया. नेक्स्ट कौन सा हो गया? 40B. तीन ही मेजर सेक्शंस बचे अभी. ओके, सो वील फिनिश देम सून. Today what time you are having your class? 5. Okay. ठीक है. Good. So I can at least take. All right. Now understand. I'll come to the next section, that is 40A2. What is 40A2? Payments made to relatives or persons having substantial interest. ये दो सेक्शन नंबर आपको याद रखने हैं. कौन से? 40A2 एंड 40A3. याद रखना. अगर कंफ्यूज हो जाते हो पहले कौन सा है तो रिमेंबर 40A2 पहले आता है. व्हाट इज 40A2? मतलब क्या है? 40A2 रिलेटिव्स पहले, बाद में कैश. ठीक है क्या? फर्स्ट रिलेटिव्स एंड बाद में कैश. सो 40A2 एंड देन 40A3. Okay. Now, payments done to relatives or persons having substantial interest. What is persons having substantial interest? 20% equity shareholding or more. So, if you make a payment to a relative and it is unreasonable, then that becomes a disallowable expenditure. You know, income tax believes कि we have chances of manipulating expenses with our relatives और पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. लाइक भाई से आपने एक्चुअली मटेरियल मंगाया 1 लाख का, पर उसको बोला कि बिल करना 2.5 लाख का. मटेरियल आया 1 लाख का, आप बोलते हो बिलिंग 2.5 लाख का कर देना, मुझे बहुत टैक्सेस आ रहे हैं, मुझे थोड़ा खर्चा दिखाना है. भाई बोलता है चलेगा, मैंने तो अभी बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे भी अच्छा है, मेरा भी सेल्स बढ़ा हुआ दिखेगा. सो दे अग्री टू डू दैट. सो
व्हाट इज अनरीजनेबल? 1.5 लाख, 1 लाख का मटेरियल आपने बिलिंग कितना किया? 2.5 लाख, 2.5 लाख का बिलिंग किया। तो FMV आपको नॉर्मली क्वेश्चन में दिया जाता है कि मटेरियल वर्थ 1 लाख बट इट्स FMV, द बिलिंग वाज ऑफ 2.5 लाख बट इट्स FMV वाज ओनली 1 लाख। मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख। व्हाट इज एक्सेसिव? व्हाट इज अनरीजनेबल? 1.5 लाख। दैट 1.5 लाख बिकम्स अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर। दैट्स ऑल इन दिस सेक्शन। एनी पेमेंट, सो यू हैव टू रिपीट, किसको पेमेंट किया? तो relatives or persons having substantial interest will be disallowable to the extent it is unreasonable, will be disallowable to the extent it is unreasonable. How do you know it's unreasonable? आपको similar service या similar product का market value दिया जाएगा, fair market value in the exam it will be given. You know, like salary paid to a manager who's your brother, you paid him 50,000 per month, but industry में manager की अभी salary का trend जो है सिर्फ 30,000 है, तो how much extra are you giving him? 20,000 per month will become disallowable. समझ में आ रहा है क्या सबको? So that is 40A2. So here we'll just have a look here. See, individual के लिए if you paid to any relative, firm के लिए any partner or its relative, HUF और AOP के लिए to any member, company के लिए director also is a relative और director के relatives are also treated as relatives. Any assessee, तो any person who's having like substantial interest, 20% or more voting rights है, then that person also comes into the definition of relative. इंडिविजुअल है तो उसके रिलेटिव्स, कंपनी है तो डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव्स, एओपी और एचयूएफ है तो उसके मेंबर्स को दिया, तो ये पीपल दिस गेट कवर्ड अंडर 40A2. मैंने बहुत बार आपको बताया असेसिंग ऑफिसर को कैसे पता चलता है कि हमने रिलेटिव को पेमेंट किया. सीए खुद अपनी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करता है. सो वी हैव अ क्लॉज व्हेन वी डू ऑडिट, टैक्स ऑडिट अबाउट 1 CR, अबाउट 50 lakhs ऑफ रिसीट्स, हम जिन असेसीज का टैक्स ऑडिट करते हैं वी हैव टू गिव अ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट, नॉट अ कारो. कारो इज अ रिपोर्ट अंडर द कंपनीज एक्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर गिव्स दैट. इनकम टैक्स ऑडिटर is going to give a income tax audit report. When I'm doing VAT audit now, 15 January was a date that got extended to 28th of Feb. So when I'm doing VAT audit, we have a separate VAT audit report. A format is fixed, so you have to fill up. So when I'm doing income tax audit, I give a list of transaction with relatives. अच्छा, X को salary दिया, brother कितना salary दिया? 3,60,000. I will not comment whether it's reasonable or unreasonable. AO, if he picks up your case for scrutiny, random basis पे some cases are picked up, then his data information is ready made. वो बोलेगा चलो relative से क्या क्या transaction हुआ, ये मेरे पास list है, बताओ क्या reasonable है क्या नहीं, he'll find out and then he will decide कुछ disallow करना है क्या. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है? Yes. Yes. No, he may reopen, the AO may open his case also for assessment. Yeah. You also get a notice like this because of somebody else. You will also get a notice like this sometimes. और उसका वो क्यों रेडी हो गया? अगर बहुत ज़्यादा टैक्स आता तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी नहीं करता ऐसा. He is doing it because he is below the tax bracket or he is paying tax at a very lesser rate or something like that. हाँ, बट उसका भी होगा, अगर रीओपन हुआ उसका केस तो होने वाला है वो. Yes. Okay. Coming to section 40A3. What is 40A3? Payments in excess of 10,000. अगर आप किसी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड या आपने फिक्स्ड असेट का तो देख लिया, अगर आप कोई फिक्स्ड असेट का पेमेंट 10,000 के ऊपर कर रहे हो तो कैश में मत करना. उसी तरह से अगर आप किसी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सैलरी पेमेंट, किसी को रेंट देना है, किसी को कमीशन देना है, एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा करना है, एट वन टाइम इन अ डे, टोटल इन अ डे टू वन पर्सन, you should not, if the payment exceeds 10,000, please make the payment by account pay check, account pay demand draft. Make the payment by account pay check or account pay demand draft. बराबर है? अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से ही आपको पेमेंट करना है. या आजकल अलग अलग ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, सो NEFT से किया, RTGS से किया, बैंक ट्रांसफर के थ्रू किया, तो इस टाइप का लाइक पेटीएम यूज़ किया, गूगल पे यूज़ किया, सो यू हैव लॉट ऑफ पेमेंट ऑप्शन, सो यू यूज़ दीज विच कैन बी ट्रैक्ड
देन दैट इज अलाउड। ये ECS वाले इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में ही आता है, डेबिट कार्ड यूज़ किया, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, दिस इज अलाउेबल। बट अदर देन दैट, अगर 10,000 आपने बेरर चेक से पेमेंट किया, कैश से पेमेंट किया, आपने सिर्फ अकाउंट पे चेक किया, उसको क्रॉस नहीं किया, मतलब just a cross check, not an account pay check. There's a difference, you know no, the difference. I think I have already told you that, right? So this is a bearer check जहाँ आप कुछ नहीं करते, ये क्रॉस चेक हो गया, और जब दो लाइंस के बीच में आप अकाउंट पे लिखते हो तो इट इज़ एन अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक कैन नॉट बी एंडोर्स, दिस कैन नॉट बी एंडोर्स, इसको हम एंडोर्स नहीं कर सकते। So that's why it's important, and normally all payment should be done by account pay check or account pay demand draft. अगर मैंने 10,000 का पेमेंट एक्सीड, सपोज 11,000 का सैलरी पे किया मिस्टर एक्स को और कैश में दे दिया, तो कितना डिसअलावेबल हो जाएगा? पूरा कि सिर्फ 1,000? एंटायर 11,000 becomes a disallowable expenditure. Entire 11,000 becomes a disallowable expenditure. स्टूडेंट्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स में इतने अमेंडमेंट्स नहीं है, 2-3 अमेंडमेंट्स है, सिंपल वंस। एक मैंने सिखाया आपको सेक्शन 28 में, कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट, अब तक वो एक ही अमेंडमेंट सिखाया। अब तक दूसरा अमेंडमेंट जो AY 1920 में आया है, अभी तक इट्स नॉट कम, इट विल कम इन सम टाइम, आई विल टेल यू दैट। सो 11,000 का सैलरी आप एक्स को देते हो तो कैश में देते हो, दिस बिकम्स अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर। हाउ मच विल बिकम अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर? 11,000 will be a disallowable expenditure by virtue of section 40A3. What else you should know about 40A3? Is there some extra limit for somebody? मतलब क्या रे? हाँ 35 समझा, लेकिन मुझे प्रोविजन नहीं समझा। किसके लिए 35 का लिमिट है? ट्रांसपोर्टर के लिए? ट्रांसपोर्टर के लिए? हाँ, पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर, दैट इज व्हाट यू शुड से। व्हेन एनी पर्सन pays to transporter, then what is the limit? 35. Limit is not for a transporter. मेरे लिए भी 35 का लिमिट होगा। सपोज कोचिंग क्लास के लिए मैंने बुक्स या कहीं से आई एम सेंडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आई एम डूइंग सम ट्रांसपोर्टेशन का वर्क, ट्रांसपोर्टर को मैंने हायर किया और मैंने उसको 30,000 का मेरा बिल आया उसका, कैन आई पे हिम इन कैश? आई एम नॉट अ ट्रांसपोर्टर. But can I? Yes, it is, the limit is 35,000 when the payment is made to a transporter. Get that very clear and don't make a mistake here. क्योंकि ट्रांसपोर्टर का क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के क्वेश्चन में अमेंडमेंट हुआ है प्रिजम्पटिव बेसिस वाला ट्रांसपोर्टर का, तो वो वाला पार्ट हम देखेंगे। तो ट्रांसपोर्टर वाला, वो गुड्स कैरेज वाला आने के चांसेस है, तो इसलिए वहाँ पे ये एडजस्टमेंट आ सकता है। ट्रांसपोर्टर ने 30,000 सैलरी कैश में दिया, चलेगा क्या? डिसअलाउ। ट्रांसपोर्टर ने 30,000 सैलरी कैश में दिया, बोलता है आई एम अ ट्रांसपोर्टर, आई एम अलाउड टू गिव, इज ही अलाउड? नो, डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर, ही इज नॉट अलाउड व्हेन यू मेक द पेमेंट टू अ ट्रांसपोर्टर, ओनली देन द लिमिट इज 35,000. द लिमिट फॉर काउंटिंग 10,000 इज टोटल इन अ डे, मतलब सुबह आपने 5,000 दिया, शाम को दोपहर को 5,000 दे दिया, केटरर है, कुछ फंक्शन है आपके यहाँ पे, पहले नंबर ऑफ पीपल वर लेस, तो आपने सिर्फ 5,000 में हो रहा था, 5,000 दे दिया, फिर और लोग बढ़ गए तो आपने दोपहर को 5 दिए, और लोग बढ़ गए, आपने उसको बोला कल को ऑर्डर है, ये लो आज और एक 5 ले लो, टोटल दिन में आपने कितना दे दिया? 15,000. इज इट एक्सीडिंग 10,000? यस, डिसअलाउड. जो थर्ड 5,000 है वो आपने नेक्स्ट डे देना चाहिए था। थर्ड 5,000 आपने कब देना चाहिए था? नेक्स्ट डे. So in a day, my total to one person should not exceed 10,000. And if it is exceeding, please make the payment by account pay check, account pay demand draft, use debit card, credit card, ECS, RTGS. There are n number of payment options nowadays with the digital payment you can do. समझ में आ रहा है? ओके. 48(3) में बहुत सारे एक्सेप्शंस है। 48(3) में क्या है? एक्सेप्शंस है, बराबर। क्या एक्सेप्शन है 48(3) में? हाँ, फार्मर को, एग्रीकल्चरलिस्ट को पेमेंट किया तो लिमिट नहीं है। ऑन द डे बैंक्स आर क्लोज्ड, बैंक्स आर ऑन अ स्ट्राइक, इन अ टाउन वेयर देयर इज नो बैंक एट ऑल, या वी हैव लॉट ऑफ टाउन्स लाइक दिस जहाँ पे बैंक नहीं है। अभी डिमोनेटाइजेशन के टाइम समझा लोगों को बहुत दूर चल के कहीं कहीं जाना पड़ा फॉर दैट रिमूविंग, टेकिंग आउट कैश, डिपॉजिटिंग कैश एंड ऑल दैट स्टफ. सो देर आर टाउन्स वेयर देयर इज नो बैंक, सो यू हैव टू, यू कैंट पुट दिस लिमिट ओवर देयर. You cannot put this limit for payment
टू गवर्नमेंट, लाइक आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, किसको पे किया? गवर्नमेंट को, तो कोई लिमिट नहीं है फिर वहाँ पे। अगर आपने आपकी फैक्ट्री का लाइट बिल 55,000 आया और जाके कैश में पेमेंट कर दिया तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। So we have certain exceptions for that. Here see, these are the systems that payment is allowed. You can do it through ECS, account pay, check, draft, NEFT, RTGS, credit, debit card is allowed. In a day it should not cross 10. अच्छा इधर और एक चीज़ है कि 10,000 का लिमिट, मतलब ये प्रोविजन अट्रैक्ट करने के लिए इनवॉइस का अमाउंट एंड पेमेंट का अमाउंट बोथ शुड एक्सीड 10,000. Invoice amount and payment amount both should exceed 10,000. Okay, invoice amount and payment amount both should exceed 10. There's a small question on that, I will do it. Now limit is 35,000, we know that, and there are certain exceptions here. Payment to bank, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू किया, क्रेडिट कार्ड, ECS, डेबिट कार्ड. अगर आप परचेज फ्रॉम सम फार्मर और एग्रीकल्चर, you purchase goods from a manufacturer who manufactures things without the aid of power. Electricity बिना use किए कुछ manufacture करना is a very big thing, and if somebody is doing it, we give them this benefit. You make a payment on a day when the banks are closed. You make a payment when in a village or town where there is no bank, not served by bank. Okay, authorized money dealer के through payment, currency exchange. टर्मिनल बेनिफिट्स मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेच्युटी, अगर वो 50,000 के ऊपर नहीं है तो उसके पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है. अरे जिसका ग्रेच्युटी 50,000 आ रहा है उसकी सैलरी शायद ही 5-6 हज़ार रहेगी महीने की, तो उस 5-6 हज़ार वाले को आपने कैश में ही देते रहे हो, उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं होगा शायद. अब उसको बोलोगे नहीं नहीं ग्रेच्युटी पे करना है, इतने का चेक है, जाओ पहले बैंक अकाउंट खोल के आओ. सो इट्स अ लिटिल अनफेयर, नो? सो दैट इज़ वाई. Payment to by way of salary to an employee. You know, if your employee is gone for a project to नागपुर, टेम्पररी किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ पे उसका बैंक अकाउंट नहीं है. आजकल ऐसा नहीं होता है. Every bank has branches. You can use ATMs of other banks also. So nowadays this is not that valid. AO नहीं मानेगा इसको कि एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया, क्यों दिया, कैश में दिया क्यों, वो जहाँ रहता है वहाँ उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है. अगर एब्सोल्युटली ऐसा यू कैन प्रूव, वेरी रेयर बट नाउअडेज, है ना. यू कैन पुट मनी इन हिज बैंक अकाउंट हियर एंड ही कैन यूज एन ATM ऑफ एनी अदर बैंक इन दैट टाउन एंड विथड्रॉ द मनी. ओके. एनी पेमेंट्स मेड टू गवर्नमेंट. करेक्ट. तो ये क्या हो गया? 48(3) हो गया. इसके ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चंस है, फटाफट ओरली कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन, कंप्यूट द अमाउंट डिसअलावेबल इन केसेस गिवन बिलो. रोहन पेज इंडियन रेलवे. स्टूडेंट्स ABCDE सारे पढ़ लो आप, A to E. क्वेश्चन 1 पूरा पढ़ लो आप. क्या हुआ रे? हाँ. What is common in A to E वाले points? All are exceptions. All of them are exceptions. So payment to Indian Railways government हो गया, sales tax government को पे किया, farmer या cultivator को payment किया तो भी exception है, banks are closed because of strike वो भी चलेगा, मिहिर pays 32,000 in cash to a transporter ये भी चलेगा, within the limit है. तो A to E के आंसर में क्या है? No disallowances. तो A to E no disallowance under 48(3. बराबर है. अभी मेरे यहाँ का क्वेश्चन देखो अलग रहेगा. सेकंड का A पॉइंट देखो आप. Determine the amount of disallowance in following cases. Okay. X Limited purchases goods on credit from Y Limited. एक बिल है, इनवॉइस कितने का है? 56. इनवॉइस कितने का है? 56,000. विच वॉज पेड एज फॉलोज. पहले 5,000 आपने कैसे पे किया? कैश में पे किया, तो अलाउड है क्या? हाँ, लिमिट है ना आपका, तो यू आर विद इन द लिमिट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो इज दिस अलाउेबल? यस. यू पेड 20,000 बाय अ बेयरर चेक. Is this allowed? No, not allowed.
So देखो, did the invoice amount exceed 20,000? Sorry, did the invoice amount exceed 10,000? Yes. Did the payment about 10,000? Yes. 31,000 you paid by account पे चेक चलता है क्या? चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ पे कितना डिसअलाउंस होगा इस क्वेश्चन में? ओनली 20,000. हाउ मच विल बी डिसअलाउड? ओनली 20,000. समझा क्या? सी, रीड द सी एंड टेल मी. सी पॉइंट पढ़ लो. क्या हो रहा है सी में? सी में एक बिल है 6,000 का, दूसरा बिल है 5,000 का. इज एनी ऑफ द सिंगल बिल एक्सीडिंग 10,000? नो. हाँ, खत्म फिर इधर ही. इनवॉइस अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 10,000. मैंने क्या बोला यहाँ पे ना, सेक्शन 48(3) इज नॉट एप्लीकेबल. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा अलावेबल है, नो डिसअलाउंस. इनवॉइस अमाउंट एक 5,000 है और दूसरा 6,000 है, तो एक भी इनवॉइस का अमाउंट, सिंगल इनवॉइस शुड एक्सीड 10,000 एंड द पेमेंट शुड एक्सीड 10,000, ओनली देन द सेक्शन इज अट्रैक्टेड, अदरवाइज नो. एक 5,000 का बिल, एक 6,000 का, आपने कंबाइन करके 11,000 कैश में पे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेक्शन 48(3) इज नॉट अट्रैक्टेड. यस. हाँ, चलेगा ना, वैसे ही हुआ ना. एक 5 और 6 का हुआ, टोटल 11 हो गया. आपने पेमेंट 11,000 कैसे दिया? कैश में दिया. हाँ, इट इज़ अलाउड. नहीं रे, ऐसे अलाउ करें कितना? इट्स डिफिकल्ट. आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, 5-10,000 की लिमिट बहुत कम है. जिन लोगों के बिलिंग 2-2 लाख 2.5 लाख के होते हैं, वेरी लेस. मैनेज करने से अच्छा है तुम चेक में ही पेमेंट कर दो. हाँ, है ना. डी. तो सी का आंसर क्या है? इट इज अलावेबल. अलावेबल. बैटरी इज गॉन. डी. A Limited purchases goods on credit from relative director for 40, market value 32, amount is paid in cash. दो सेक्शंस के डिसअलाउंस होंगे. (48) टू रिलेटिव्स. पहले हमेशा सीक्वेंस में जाने का, तो 48(2) का डिसअलाउंस पहले, बाद में 48(3) का डिसअलाउंस. बताना तो कितना आएगा डिसअलाउंस? 8,000 अंडर 48(2) बिकॉज इट्स अनरीजनेबल ना. आपने 40,000 का बिलिंग किया, लेकिन उसका FMV कितना है? हाँ, FMV इज 32. सो एक्सेसिव या अनरीजनेबल अमाउंट जो था वो 8,000, इट हैज बिकम डिसअलाउड. सो डिसअलाउंस इज 8,000. व्हाट अबाउट 48(3) का डिसअलाउंस? 32 कि 40? 32. या 32,000, करेक्ट. सी आई टेल यू, एक ही पर्सन को 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलती है. तो लाइक यू नो, आप 2 बार फांसी नहीं दे सकते, तो पनिशमेंट एक ही बार मिली है, डिसअलाउंस एक ही बार होने वाला है. तो यू नो, इवन इफ यू हैव मल्टीपल क्राइम्स, यू आर गोना नॉट गोना गेट कन्विक्टेड फॉर ऑल ऑफ देम, यू नो. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सी, टोटल खर्चा कितना किया? 40. तो कितना मैक्सिमम डिसअलाउ हो सकता है? 40. उसमें से 8 गॉट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48(2). एंड बैलेंस के बारे में ही सोचना है अभी, वापस पूरे 40 के बारे में नहीं सोचना है. बैलेंस 32, बिकॉज इट इज इन एक्सेस ऑफ 10,000 का लिमिट, इट विल गेट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40(a)(3). इट विल गेट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40(a)(3). इज दैट क्लियर? बराबर है. The next one, E1.
48(2) का डिसअलाउंस कितना आएगा? 17 एंड 48(3) का डैश आएगा। हाँ, टोटल देखो मेरा कितना खर्चा किया मैंने, 26। उस 26 में से 17 डिसअलाउ हो गया बिकॉज इट इज अनरीजनेबल। हाउ इज इट अनरीजनेबल? हाँ, एफएम भी कितना था? 9000। तो कितना अनरीजनेबल हो गया? 17000। तो 17000 एक बार उस 26 में से डिसअलाउ हो चुका है। नाउ थिंक अबाउट ओनली द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग। व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग? Balance is 9000. Is it paid in cash? Yes, no problem because it is within the limit of 10,000. So no 48(3) का disallowance. So 48(3) dash and ये 17,000. समझा क्या? पक्का? Are you all okay with this? Next now. One second. Okay, moving ahead to the next section. Let's see. 48(7) provision for gratuity. Again 48(7), 49 more or less same, section 36 में कवर हो गए। अगर ये कोई खर्चे एक्सपेंडिचर करके अलाउेबल नहीं होंगे, कब अलाउ होंगे? एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी अलाउड ओनली व्हेन द ग्रेच्युटी फंड इज अप्रूव्ड. Similarly, staff welfare fund is approved. So that is what it's saying. Contribution by employers, contribution by the employer to a non-statutory fund is disallowable. So it's saying the same thing what I've told you in section 36. So no problem. Now we'll come to section 43B है actually ये. Yeah, so this is section 43B. 43B कर रहे हैं ना, यहाँ पे C है, क्या है? No, this is okay. बी नीचे दिया है। ओके, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, लेकिन कंसेप्ट कि अगर 10,000 के ऊपर ये है कैश में पेमेंट या फिक्स डिपॉजिट फिक्स्ड असेट के लिए, देन दैट 10,000 इज नॉट कंसिडर्ड एज योर, देन दैट 10,000 विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग योर डेप्रिसिएशन. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. नाउ 43B. व्हाट डू यू नो अबाउट 43B? आई विल एक्सप्लेन नाउ. फर्स्ट, do you know that there are certain expenses which will be allowed on payment basis? So there are certain expenses which will be allowed on payment basis. There are only 7 expenses की list है. Now students, ये ना एक ओवर एडिंग सेक्शन है, मतलब भले ही आप मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करो. 43B क्या बोलता है? तुम कैश फॉलो करते हो या मर्केंटाइल, आई डोंट केयर. 7 expenses will be allowable only on payment basis. So there are 7 expenses allowed on payment basis. अच्छा, payment basis मतलब पेमेंट कब तक करना है? What is the time limit for making the payment? Time limit for payment, making the payment is not only within the PY. During the year payment करोगे, great, allowable as expenditure. But now listen to this, I want to cover something very important over here. If I make the payment during the year, great, it's an allowable expenditure. But can I make the payment even up to the due date? Yes. उस साल का जो रिटर्न का ड्यू डेट है उसके अंदर भी अगर आपने पेमेंट कर दिया तो क्या होगा? चलेगा, वी हैव नो प्रॉब्लम. ओके, सो हियर इट इज हमेशा ये रेलेवेंट पीवाई, सपोज योर रेलेवेंट पीवाई इज 18-19, तो उसकी ड्यू डेट क्या ड्यू डेट हो सकती है? आइदर लेट्स से इट्स अ कंपनी एक्स लिमिटेड, तो कंपनी के लिए ड्यू डेट क्या होता है? फॉर कंपनी द ड्यू डेट इज 30th September 2019. तो इफ यू मेक द पेमेंट आइदर ड्यूरिंग दिस ईयर, ग्रेट,
allowable expenditure. You make the payment up to this date, allowable. Which year? This year only, PY 18-19 में. So any payment that is done up to this line is allowable expenditure in that PY, that is PY 18-19. So it becomes an allowable expenditure in PY 18-19. It's allowable expenditure in PY 18-19. Are you understanding this, everybody? Okay, if I make the payment beyond this, what happens if I make the payment beyond this? If you make the payment beyond this, it becomes a. If you make payment beyond this, then it becomes an allowable expenditure in the year of payment. Listen to this sentence, what I am saying now. Can I say the 7 expenses covered under 43B shall be first allowable on due basis if paid within the time limit? Yes. If you pay it within the time limit, what is the time limit? The same PY or the due date. उसके within पे कर दिया तो जिस year को belong करता है उसी year में allow हो जाएगा. हाँ, ये लॉजिक इस टाइप का एंगल में क्यों बता रही हूँ? MCQ की वजह से. इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं आप बोले 43B मतलब सिर्फ पेमेंट बेसिस, नहीं, ऐसा नहीं है. अगर 43B है तो समटाइम्स येस, इफ इट इज अलावेबल पेड इन द ईयर ऑफ पेमेंट और टिल द ड्यू डेट, विल इट बिकम एन अलावेबल एक्सपेंडिचर इन द ईयर ऑफ टू द ईयर इट विच इट रिलेट्स टू? यस. हाँ, लेकिन तुमने ड्यूरिंग द ईयर भी पे नहीं किया और उसके ड्यू डेट में भी पे नहीं किया, आगे पे कर दिया, देन इट विल बी अलाउड एज अ खर्चा आगे. एंड व्हाट इज दैट आगे वाला डेट इज due the year in which payment is done. Like here if you make the payment in December 19, फिर कौन से ईयर में खर्चा अलाउ होगा? December 19 मतलब PY 1920 मतलब AY 2021. हमेशा इसलिए मैं क्या बोलती हूँ, खर्चा जिस ईयर को बिलोंग करता है वो लिखो वहां पे, उसके आगे उसका ड्यू डेट लिखो. फिर देखो क्या आपने वो डेडलाइन है, उस डेडलाइन में पेमेंट किया तो जिस ईयर को खर्चा बिलोंग करता है उसी ईयर में खर्चा अलाउ हो जाएगा. उसके आगे पेमेंट किया तो खर्चा आगे अलाउ होगा. समझ में आ रहा है क्या?